I am your host, Salim bin Muhammad Rafi. Here is your YouTube channel Zamir Universal. Before I proceed further, please I request you to please subscribe, put your finger on the bell, and kindly comment on the content. And if you like it, you will get a notification so that you can see what is new. I am a scientist. I am not a journalist. I am just a freelance writer. I am an historian by profession. I am a teacher. I am a scientist, and having Canadian fellowship, American fellowship, British fellowship, and a PhD. I have given all my life to education, to research, to medical and health sciences, and help humanity. And my intention is really not, I'm not a politician, and so please forgive me if I make any comment and it hurts a politician or he takes that comment for him personally. I do not intend to insult anyone, but I think I have to take layer by layer the lid of the evil. And at the moment, the evil I see is myself being a very neutral person is the Jews. And I'm sorry, I apologize from those good Jews who do not want war, who want to live in peace with Arabs or Muslims and Christians, and do not spit on them, do not put their cross under their foot, do not destroy every habitat, consider every human being as a human. They do not teach their children that Arabs are just elephants, animals, and they are not human beings. So you must hate them, you must expel them. This land belongs to you, and I don't brainwash them. I let them have their own mind. And this is what is basic thing, that you all of it. It applies to Muslims, it applies to Christians, Buddhists, Hindus, atheists, even any human being, that you teach them and let those people have their own mind. Let them develop, let them be a good human being, be just, speak the truth, and stand on the right side of the things. No cruelty, no butchering, no rape, no murder, no torture, no burning, no decapitating babies, not being proud by hitting them in the head and bullet, and someone saying that I have killed 90 babies, the 1 month old, when they were crying, I didn't look at them. I just cut their head off and then threw it in. Since they were Palestinian, and I was taught there, and this is now they are hiding like rats. All these IDF soldiers, no matter who did it, it's not their fault. It is the fault of those teachers who taught them, rabbis who taught them. Netanyahu, dirt and filth like them, Ben Giver, like those extremists, the Zionists, who are, in my view, they are not Jews. They came from all across. They are scum of the society, leftovers of Hitler's hope. They had been in the incinerators and gas chambers, are not the good Jews. And you see very, very good Jews. I have personally many good friends. They are very, very big world-known professors and cardiologists in the world who are Jews. And when my colleagues, neonatologists, pediatricians, reproductive medicine men, scientists, biochemists, and geneticists, and I fail to see that some kind of this atrocity in them, that cruelty in them. So Netanyahu is an animal. So we cannot generalize that all the Jews are animals. They aren't. And with this apologize, I just want to comment on that, those who have forgotten the Great Fire of London, they should know that this is a wrath of God Almighty. So God is there, the Creator is just, and He is there somewhere up in the heavens, in seven skies. He created in few days, is there. He is the one we Muslims worship, the Christians worship, the Jews worship. It's the same God. But unfortunately, the Christians and the Jews, they have animosity and they spit on each other, and this is why the graves of the Jews were dug all over the world. They've been expelled from the world in 48 countries. Now you can see that they are hiding. See what is happening to them in now the recent arrest of the IDF, who with pride used to say and sign on those missiles and bombs which destroyed and burned the Palestinians in Gaza alive, or those who poured cement and poison in the drinking water and wells.
all those who bombs the hospitals, and you can see the charred bodies of babies who were in the incubators. Now this is directed towards that, and the recent fire, you see, they leveled with all their might, their superpower, with all the bombs, all the billions of your taxpayers' money. So you cannot, escape God's wrath. So, with that, if you think that the millions dollars, all those ranches and bungalows owned by those, Hollywood actors or those, rich Californians have been burned, along with them, poors who worked and helped them in their homes as their butlers, as their cooks, as their, people who watered their gardens or cut their hedge or the grass or looked after their horses, their pets, were guards or drove their chauffeurs. They died also. Well, they burned. So people say that it was on purpose. One person, they caught it and they think he did. For God's sake, how could he just order the wind? It was the wind effect. The isolated one house may have been burned or two. All this wildfire which is never seen, the God showed you right in this word that you leveled Gaza. They are my creation and they were innocent, and mostly you killed women and children, and that's unfortunately is not the Los Angeles people who did it, but it is their tax money which went, and the bombs and all those billions which they are getting there, it's the money which keeps it going. And if they had not done it, and I think the people should spit on the face of Joe Biden, and Pope should refuse to meet him when he is traveling in the last 10 days to Italy. I think he should be banned from visiting any Islamic country or Christian country or any country, Japan even, anywhere. And people should spit on him, spit on every idea of soldiers, spit on Netanyahu, spit on him and ban them. And I think the president's visit now to Cyprus was on purpose. And I'm glad that there was all the Cyprus people came out and they shouted, why the hell did you come here and expose us when you destroyed Gaza, our neighbors, and after the water it is our island. So they are the most hated people at the world. The president of it, that maybe that's an artificial illegitimate. The best way is to transfer them to Europe. Europe already accepted, past the 10 years, accepted more than 100 million refugees. I don't think that another 1.5 million refugees would make any difference for the Europeans. And as the Bible says, this place is for us, it's promised for us, so they can starve to death to pay on the things that they've done to us on the 7th of October. Would you live in Gaza once all is said and done? Totally. If my wife would agree for that, totally I would go live over there. הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה עכשיו מות הגמרא בגיטין ומזלמות שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצא מהקיבה של בני האדם וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש כרתו רגע. זה ככה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הערה בברזיל, מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה. ולהוציא את השקר של כולם החוצה. את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העבודות של כולם. את העבודות של כולם הוא ייקח. שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתף של גן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות הרפואית. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी अमेरिका के अंदर आप जानते हैं सब कि वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में आग लगाई थी। अभी वहाँ का मामला ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद आप ये देखिए न्यूयॉर्क के अंदर भी बिल्डिंग्स को आग लगना शुरू हो गई है। और न्यूयॉर्क में ये जो आग लगी है, ये इतनी भयानक आग लगी है, इतनी ज़्यादा भयानक आग लगी है कि आप अंदाज़ा कर लें कि 5 अलार्म
मैसिव 5 अलार्म, जो अलार्म्स के 5 लेवल होते हैं उसमें जो मैसिव 5 अलार्म है ये असल में इस वक्त नाफिज किया गया है। इसमें होता ही है कि लेडर्स लाना होता है, एरियल आपको सारी सपोर्ट देनी होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, फायर फाइटर्स बड़ी तादाद में आने होते हैं, फौरी तौर पर एवैक्यूएशन करनी होती है। मुल्क भर में जहाँ जहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आपको मदद तलब करना होती है, एजेंसियों को, फौज को, हर तरह से आपको अलर्ट रखना होता है। अब आप अंदाज़ा करें इस वक्त कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि अमेरिका के अंदर अचानक से मुख्तलिफ जगहों पर कैसे आग लगना शुरू हो गई है। लॉस एंजलिस में आग लगती है, पूरे के पूरा यानी तबाही के आसार जो आते हैं वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे, और यहाँ पर जो आग लगती है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त आग लग रही है वो इंडिकेट कर रही है चीज़ें कि कितनी इस वक्त तबाही आने वाली है और हालात किस लेवल पर जा रहे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि आग लगी है, लोग अपने जानवर और ये वो उन्हीं को लेकर बस अपने आप को और उनको लेकर निकले हैं और पता भी नहीं चला, और कोई इस पर जवाब देने को तैयार नहीं कि अब ये आग कहाँ कहाँ जाएगी और क्या सूरत हाल होगी। ऐसा लग रहा है कि इस सारे मामले पर कुछ ऐसा है जो अभी तो खुफिया रखा जा रहा है। क्या देखिए, ट्रंप ने कहा था कि उसने आते ही सबका एहतसाब करना है। क्या इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर किसी खुफिया एजेंसी अमेरिका की वहाँ किसी का दफ्तर था या वहाँ कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ था? देखिए, मोस्टली तो इनके रिकॉर्ड्स होते हैं डिजिटल, लेकिन आपको पता है चूँकि साइबर अटेम्प्ट्स होती है बहुत सारी जगहों पर, तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको खुफिया रखा जाता है। आज भी अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनको डिजिटल नहीं रखा जाता। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप इंटरनेट पर नहीं रख सकते, या आप कोई ऐसा सिक्योर कम्युनिकेशन भी नहीं रख सकते क्योंकि उसके ऊपर भी साइबर हमला होने का खदशा है। अब इस सारी सूरत हाल में कोई इस वक्त जवाब देने को तैयार नहीं कि अमेरिका के अंदर पहले जंगलात में, बागात में, विलास और दीगर जगहों पर आग थी, अब वहां से होते होते वो आग न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है, और इतनी भयानक आग है कि आप उसको देखें तो ऐसा लगता है इंसान कांप उठता है देखकर। आप ऐसे मनाजिर को लाइव देखें और आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, हम में से किसी का भी ऐसे घर हो इस तरह की बिल्डिंग में और वो अपने घर को जलता हुआ, अपने अपार्टमेंट को जलता हुआ या अपने घर को जो जंगलात में है या किसी जगह पर उनको जलता हुआ देखे, तो उसके लिए तो वो क़यामत ही है। वो सब कुछ तबाह बर्बाद उसने कर दिया। अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि ये जो आग है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क तक आ गई है, ये यहाँ पर सलामत नहीं रहनी। देखिए, असल अभी तक जो मामला हो रहे हैं अमेरिका के अंदर वो ये इस चीज़ों को देख रहे हैं कि हमने रिसेंटली सिम्पसन्स को देखा, उसमें पेशन गोइयाँ की गई थी कि 2025 के अंदर अचानक से आपको पूरी तरह मुल्क के अंदर यानी हंगामी महंगाई नज़र आती है, स्टोर्स पर चीज़ें गायब हो जाती हैं, पूरे मुल्क के अंदर अचानक से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि आग लग रही है, और एक जगह पर नहीं कई जगह पर आग लगती है। और ट्रंप वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर वो देखता है वो आग पर काबू पाने में नाकाम है। अब आप ये सोचिए, आग एक जगह लगी है और उसके बाद न्यूयॉर्क तक आई है, और जो पहली आग लगी है उसने तो अमेरिका की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और दुनिया की तारीख के भी आप समझे ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो रिसेंटली हम नॉन हिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद ये जो मामला हुआ है ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। जंगल में किसी में कोई सोसाइटी आबाद थी, वहाँ पर आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते अब अमेरिका के अंदर भी आग लग रही है, और इसके बाद न जाने व्हाइट हाउस की जानिब ये मामला जाएगा, किसी और जानिब जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बड़े ही तरीके से कोई रस्म अदा की जा रही है, और आपको पता है जो शैतानी रस्में होती हैं उनका आग के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये सारे का सारा काम हो रहा है, और आप देखेंगे एंड के ऊपर किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। हम अक्सर बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कि जी फलाना, वहाँ पर आपको नजर आएगा कि अमेरिका के अंदर भी जो जितनी आग लग रही है, जितने लोग मारे जा रहे हैं, ये पूरा कोई खेल खेल रहा है पीछे बैठकर। और इस सारी सूरत हाल के अंदर देखिए, आग जब लगती है, जब बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है डेवलपर्स जो होते हैं वो उनको फ़ायदा होता है कई जगहों पर। अब आप सोचें कि जब अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट में सिर्फ अपार्टमेंट की वैल्यू होती है। ये कभी ज़हन में रखिए कि किसी भी तरह से लट से किसी आम शख्स ने अपार्टमेंट लिया है तो उसके पास ज़मीन नहीं है, वो अपार्टमेंट में रहता है, तो ये जिस तरह आग लगी है उसको क्या मिलेगा। तो इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग जो खासतौर पर लॉस एंजलिस में जो आग लगी है
वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन है, कुछ लोगों के पास नहीं है। उनको ये कहा जा रहा है, कोई आ रहे हैं लोग और आकर उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा घर जल गया है तो हमें बड़े सस्ते से ज़मीन ये दे दो। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका 35 मिलियन यूएस डॉलर्स का, 35 मिलियन यूएस डॉलर का कोई घर था, उसने सेल पर लगाया और वो जलकर आग का ढेर बन गया। उसको आकर कहते हैं कि तुम हमें 1 मिलियन या 750, यानी खास तौर पर के 750 से मुराद ये है कि 7,50,000 यूएस डॉलर के अंदर तुम हमें वो ज़मीन दे दो। अब आप ये सोचिए कौन लोग हैं, वो सबके पास जा रहे हैं, उनको जाकर कह रहे हैं ज़मीन दे दें। किसी की क्या कीमत है घर के मुताबिक। आग लगे अभी 2 से 3 दिन नहीं हुए और पूरी दुनिया में कोहराम मचा, साजिशों का बाजार गर्म है, लेकिन बड़ी ताकतों के लोग आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपका घर जल गया है, इंश्योरेंस ने आपको क्लेम नहीं किया तो आप ये ज़मीन अभी बेच दें, क्योंकि उसके बाद हमसे बेहतर आपको वैल्यू कोई नहीं दे सकता। ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो किसी को कह रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा कि एक बंदे का 35 मिलियन यूएस डॉलर का चला गया, उसने 7,50,000 की ज़मीन बेचकर क्या करना है। यानी वो जगह रहने के काबिल भी नहीं है, इन्वायरमेंट वहाँ पर ख़राब हो गया है। अब यही तो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और समझ नहीं आ रही किसी को कि अमेरिका में कैसे आग लग रही है, और ये आग बढ़ती बढ़ती अब अमेरिका के न्यूयॉर्क तक आ गई, आगे क्या वाशिंगटन तक जाएगी, फिर ये कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता। जो अगला मरला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि गालिबन अब पता ये चला है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर 2025 में आग लगने वाली है, और जहां जहां आपको जंगलात नजर आएंगे वहां वहां आग लग रही है, और उसको नाम दिया जाएगा कि जी मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट है, फलाना है, ये है वो है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। जबकि बैकएंड के ऊपर जो बैठी हुई ताकतें हैं वो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट ख़राब करने के साथ यानी आप कुदरत को मुकम्मल तौर पर, नेचर को चैलेंज कर रहे हैं कि हम मौसम को बिल्कुल तब्दील करेंगे, बिल्कुल उसको ख़राब करेंगे। देखिए ये जो जंगलात हैं, आप गौर करें, इसके बाद जब ये चले जाते हैं तो फ़िज़ा कितनी ख़राब होती है। आप उसकी सिंपल सी मिसाल ले लें कि अगर हम लाहौर की बात करें तो आपने गौर किया होगा लाहौर, फैसलाबाद और दीगर जगहों के ऊपर, दिल्ली की बात कर लें, कितनी बदतरीन स्मोक होती है। और उससे आपको पता है कि सिर्फ हम अगर लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में ये हालत हो गई है कि यानी आम रूटीन में तकरीबन 8 से 10 साल लोगों का लाइफ स्पैन कम हो गया है। यानी आप ये सोचें कि 30 साल के बाद, 30 से 32 साल के बाद इंसान बीमार रहना कंटिन्यूसली हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है, उसको बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। और फिर उसकी जो लाइफ है, मिसाल के तौर पर कोई गुजरांवाला रहता है या सियालकोट रहता है या किसी और जगह पर रहता है या पेशावर है, वहाँ की लाइफ स्पैन और लाहौर की लाइफ स्पैन में 8 साल का फ़र्क आ चुका है। यानी जो आप 8 साल पहले किसी और मुल्क के अंदर जिएंगे वो आप यहाँ पर मर जाएंगे। यानी आम रूटीन के अंदर, अब लाहौर के अंदर जो ज़िंदगी का तनासुब है, आम रूटीन में पाकिस्तान में आप देखें तो 68 ईयर्स तक एज आ गई है, 68 साल एवरेज एज है पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर के अंदर इस वक्त 58 to 59 आ गई है। तकरीबन 8-9 साल का फ़र्क पड़ चुका है क्योंकि जितनी स्मोक है। अब एक तो ये जो आप लाइफ और हम सारे जीते हैं ये फैलती जा रही है पूरे पाकिस्तान में, दिल्ली का भी यही हाल है। अब आप ये सोचें, इन्वायरमेंट जब ख़राब होगा तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और खाली ऐसा नहीं है कि वो जी 58-59 साल की उम्र में जाकर उन्होंने मर जाना है। आप गौर करें तो वो बीमार होना शुरू होते 30-32 साल की उम्र में, फिर दवाइयों पर लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारी खुराक जो है वो कितनी गंदी है, हमारा लाइफस्टाइल कितना गंदा है, रातों को हम इतना ज़्यादा खाते हैं, वॉक नहीं है, जिम नहीं है, हालात नहीं है, चीज़ें नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आप ये सोचो कि उसके बाद इंसान कितना बीमार पड़ रहा है। ये लाहौर से लेकर आप दिल्ली से ले लें, इवन कि अब हर जगह पर ये हो रहा है। तो ये जो आग लग रही है अमेरिका के अंदर भी, इसके पीछे भी ऐसे असरात है जो हमें बहुत देर बाद नजर आएंगे। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो ग्लेशियर्स कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं कि अगले चंद सालों में जो खौफनाक हालत है कि ऐसे सैलाब आने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए होंगे। और 2025 के अंदर जो ख़ास तौर पर बाबा वांगा और दीगर ये तमाम लोगों ने बातें की हैं वो यही है कि आपकी आग लगेंगी, डिज़ास्टर्स होंगे, तबाही होगी, नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स आएंगे और ये सब कुछ होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, वजह कुछ भी बन रही हो ये रहा है। ये कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे सारी बिल्डिंग्स तबाह कर रहा है, कैसे जंगलात को आग लगा रहा है, इस पर एक्शन देखिए। ट्रंप अगर ये कर पाया, इनको यानी ले आया सामने तो बड़ी बात है, अदरवाइज लग रहा है कि शायद चीज़ें उसके हाथ से भी। Wake up, won't
you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love, you've been upon through every sequel. Wake up, wake up, wake up, wake up. Call your brother, call your mother. Wake up under aid from the sky. Oh love, we're digging deeper in the rubble. Hold on to my voice outside. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर